A very good afternoon to all students. So my today's topic is meningitis. This topic is from MSN to Unit Neurological Disorders. So first, my today's objectives will be to define meningitis, to explain causes, and to enlist the types of meningitis, and to explain the symptoms of meningitis and diagnostic tests for meningitis, management of meningitis, and with this nursing management. So let's introduction of the main topic. I will review the anatomical portion of this topic. So this is the brain and spinal cord. Okay. So basically, our skull has three layers: durameter, arachnoid, and pyometer. The function of these layer is to protect the brain and the spinal cord. So meninges are also work like the same. They also protect the brain and spinal cord. Here is the meninges. These it's a tough and a fibrous membrane that protects the basically brain and spinal cord. So let's come to the definition. Meningitis is a disease caused by inflammation of the protective membrane covering the brain and spinal cord. So meningitis is nothing but just a infection of the brain and spinal cord. So this is the normal brain, and this is the brain infected with bacterial meningitis. The next is causes of meningitis. So for any kind of infection, there are various kind of virals and bacteria. So here also the causes of meningitis are bacterial, viral, fungal, rickettsial, protozoal, and it can be also occur from physical injury and certain drugs. So basically the meningitis is a bacterial and viral infection. So bacterial causes example are Haemophilus influenza, meningococcal, and mumps, pneumococcus, group A and B, streptococci. These are the kinds of bacteria that causes meningitis. Second is viral, enterovirus, herpes virus, and fungal streptococcus, histoplasma, candid, rickettsial, Rocky Mountain spotted fever, and parasitic protozoa, amoeba, plasmodium, toxoplasma, and certain drugs like NSAIDs. So next is types of meningitis. Viral and bacterial infections are the most common causes of meningitis. So viral, bacterial, fungal, parasitic, these are the types of meningitis. तो बेसिकली वायरल मेनिंजाइटिस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होता है. तो फर्स्ट वायरल मेनिंजाइटिस. तो वायरल मेनिंजाइटिस के एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया अभी, एंटेरोवायरस है, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस है. वायरल मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस के लिए. जिसका कॉमनली ये समर और फॉल वाले सीजन में होता है. इसमें जो वायरसेस कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस को वो है कॉक्सैकी वायरस ए एंड कॉक्सैकी वायरस बी. और वायरल मेनिंजाइटिस टिपिकली बिना ट्रीटमेंट के ही सही हो जाता है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इसमें होता है. सेकेंड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बहुत ही कंटीजियस होता है और ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच इज़ टिपिकली फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनसेस एंड नेसल कैविटी एंड कैन कॉज न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस. ओके, दो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो कॉज करते हैं उसमें दो बैक्टीरिया हैं जो मेन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस. Neisseria meningitis, which is spread through saliva and other respiratory fluids and causes what's called meningococcal meningitis. Haemophilus influenza, which can causes not only meningitis but infection of the blood and inflammation of the windpipe, cellulitis, infectious arthritis. Staphylococcus aureus, which is typically found on the skin and the respiratory tract and causes staphylococcal meningitis. So bacterial meningitis के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं. फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो मेनली क्या होता है कि
ये एक तरीके से जो मेनिंजेस होती है वहाँ पे डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बॉडी में अदर जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ उधर से उधर इन्फेक्शन करके फिर ये ब्लड के थ्रू वहाँ पे मेनिंजेस तक पहुँच सकते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस को। अब अदर कॉजेज़ भी हैं जो फंगल से होते हैं, फंगल पैरासाइटिक, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। मेनली मेनिंजाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। सो फंगल मेनिंजाइटिस बहुत रेयर टाइप होता है, ये मेनली फंगस से होता है जो मेनली ब्लड को इन्फेक्ट करेगा सेम, देन उसके बाद ब्लड से फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को ही इन्फेक्ट करता है। तो जिनकी इम्यून सिस्टम लो होता है तो मेनली उनको ये ज़्यादा हो जाता है। सो पैरासाइटिक भी है तो पैरासाइट्स की वजह से होगा। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स। सो जो मेन सिम्टम्स है मेनिंजाइटिस के, उसमें फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस और चेंज इन मेंटल फंक्शन है। सो वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सिम्टम डिफरेंट होंगे। सो वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, अगर मेनली इन्फेंट्स में कॉमन होता है, सो डिक्रीज एपिटाइट, इरिटेबिलिटी, स्लीपनेस, लेथार्जी, फीवर, हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, सीजर्स। ये है यहाँ पे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये मेनिंजेस है जो जिसमें इन्फ्लामेशन हो गया, देन ये फिर इसकी वजह से पेन होता है नेक रीजन में। स्लीपीनेस, लेथार्जी, नोज़िया, वॉमिटिंग, डिक्रीज एपिटाइट, ये सारे सिम्टम्स हैं वायरल मेनिंजाइटिस को। जो मेनली अगर हमें वायरल फ्लू भी होता है, वायरल होता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो उसमें भी हमें यही ऐसे कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर होता है, हेडेक होता है, लेथार्जी होती है, नोज़िया, वॉमिटिंग होता है। तो मेनली इसमें भी यही है, बस नेक स्टिफनेस इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड है। सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, इसमें भी मोस्टली सिम्टम सेम ही है, जैसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, इरिटेबिलिटी, हेडेक, फीवर, चिल, स्टिफनेस और स्किन में पर्पल कलर के ब्रूसेस आ जाते हैं, स्लीपीनेस, लेथार्जी। द नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। कैसे कंफर्म होता है कैसे कंफर्म होता है कि मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल है, वायरल है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेनिंजेस जो होती हैं एक तरीके से आफ्टर मोस्ट लेयर होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसके अंदर होते हैं एरेक्नॉइड, पाईमीटर। और एरेक्नॉइड और पाईमीटर ये जो होती है, इसके बीच में क्या होता है, एक सीएसएफ फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन भी एक तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है और न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं। सो मेनली ये एरेक्नॉइड स्पेस में होता है, देन उसके बाद फिर वहाँ से वेंट्रिकल्स के थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होते हैं मेनिंजेस की, वहाँ पे ये फ्लो करता है। सो तो अगर मेनिंजाइटिस है तो उसमें क्या होगा, इसमें भी सीएसएफ के अंदर जो भी फ्लूइड है उसमें भी चेंजेस आएंगे, जैसे ग्लूकोज लेवल, प्रोटीन लेवल, ये है नॉर्मली। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो ग्लूकोज का लेवल लो हो जाएगा, प्रोटीन्स का लेवल हाई हो जाएगा। अगर वायरल है तो ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा लेकिन प्रोटीन लेवल हाई हो जाएगा। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए है लंबर पंचर। सो लंबर पंचर से हमें क्या पता चलता है, सीएसएफ फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं। सेकंड, ब्लड कल्चर। सो ब्लड कल्चर इसलिए कि ये कंफर्म करने के लिए कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। अगर बैक्टीरियल है तो मैंने आपको उसके अंदर बताया कि उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मेनिंजाइटिस किस बैक्टीरिया से कॉज हुआ है। चेस्ट एक्सरे है कंफर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल बताया, इसमें टाइप्स बताता है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस का, जो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होता है, देन उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो मेनिंजेस को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन सेम है, सीटी स्कैन ऑफ हेड, ब्लड टेस्ट में सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो मेनली बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसकी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है, ESR लेवल बढ़ जाता है। तो मेनली इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी करते हैं, CBC, LFT, KFT आर दी अदर काइंड्स ऑफ टेस्ट वी कैन टेक।
ठीक है। अब इसके बाद है कि मेनिंजाइटिस कन्फर्म है तो उसके एक साइन है, 2 साइन हैं जो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो अदर सिम्टम्स हैं जैसे हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू लाइट, ये सिम्टम्स मेनली बहुत सारे डिजीज़ में, न्यूरो के बहुत सारे डिजीज़ में कॉमन है। लेकिन मैंने इसमें आपको बताया था इसमें नेक स्टिफनेस होती है। सो नेक स्टिफनेस को चेक करने के लिए कि 2 साइन है यहाँ पे, कर्निंग साइन और ब्रूस्की साइन। ओके, सो कर्निंग साइन और ब्रूस्की साइंस में क्या होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे ये है कर्निंग साइन में इसमें क्या करना है, आपने पेशेंट को बोलना है कि फ्लैट लेटना है। ओके, देन उसके बाद फिर एक लेग को 90 डिग्री एंगल में एक्सटेंड करना है। ओके, 90 डिग्री में एक्सटेंड करना है, देन उसके बाद फ्लेक्स करना है। अगर ऐसा करने में पेन हो रहा है पेन को, ठीक है, एक्सटेंशन में देन फ्लेक्शन में, तो मीन्स कि ये कर्निंग साइन ये कंफर्म करता है कि मेनिंजाइटिस है पेशेंट को। सेकंड है ब्रूस्की साइन। ब्रूस्की साइन में क्या है, अगर पेशेंट को नॉर्मली फ्लैट पोजीशन में लेटने को बोलना है, देन इसके बाद अगर नेक को रेस करते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, लेग्स में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए थे, फ्लैट ही रहने चाहिए। लेकिन क्या होता है इसमें लेग्स फ्लैक्स कर रहा है पेशेंट, तो इससे कंफर्म होता है फ्लैक्स करने में और नेक में पेन होने में। तो ये 2 साइन होते हैं मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए, कर्निंग साइन एंड ब्रूस्की साइन। द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट, अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो वायरल मेनिंजाइटिस तो मेनली टिपिकली जो होता है वो उसके लिए सिम्टोमेटिक्स मैनेजमेंट होता है, ये फिर एंटीवायरल ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, और वायरल मेनिंजाइटिस में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। फ्लूइड्स में भी गिवन टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ ब्रेन स्वेलिंग, शॉक एंड सीजर्स। ऑटोमेटिकली है कि अगर ब्रेन की लेयर्स में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, आईसीपी रेज हो सकता है पेशेंट को, और स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है। तो इसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे या फ्लूइड्स दे सकते हैं। तो एक प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए यहाँ पे वैक्सीन होते हैं जो बच्चों में डेली दी जाती है, जैसे हीमोफिलस वैक्सीन होती है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन होती है। ये हमने टाइप्स में पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के टाइप, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये टाइप्स पढ़े थे हमने। तो इसके लिए अगर पहले ही ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या कर दे देते हैं, हीमोफिलस वैक्सीन देते हैं बच्चों को। और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एक टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन देते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आती है जो इफेक्टिव होती है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। सो इसके साथ ही एक प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है हमें कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है मेनिंजाइटिस का, जैसे ये वायरल भी है बैक्टीरियल भी है। बैक्टीरियल तो ड्रॉपलेट से नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होगा, लेकिन जो वायरल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करना है, हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को कि वॉश करना है हैंड्स को ऑफन, स्पेशली व्हेन एक्सपोज टू सन, और डिसइंफेक्टेंट करना है सर्फेसेस को रेगुलरली अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है मेनिंजाइटिस से। अवॉइड करना है क्लोज कॉन्टैक्ट्स को विद अदर्स के हु में हैव इन्फेक्शन, और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं मेनिंजाइटिस के स्प्रेड को रोकने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ नर्सिंग केयर प्लान फॉर मेनिंजाइटिस। सो टिपिकली सिम्टम्स के बेस पे हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं इस हस्ते की। जैसे इसमें पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को मेनली सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया ड्राउजीनेस होता है, लिथार्जी। सो ड्राउजीनेस एंड लिथार्जी का मेन कॉज क्या है, वो इसीलिए हो रहा है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, और अगर जैसे तो उस वजह से क्या होगा कि बॉडी की जो टिश्यूज़ की डिमांड्स है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसीलिए पेशेंट इरिटेटेड है, लेथार्जिक है। और तो इस वजह से CO2 लेवल्स ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम है। तो एक डायग्नोसिस हम यहाँ पे बना सकते हैं, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एंड दैट इज़ पॉसिबली, हमें कैसे पता चलता है, पॉसिबली एविडेंस बाय ड्राउजीनेस एंड हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया इज़ द इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड। सो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे यही होगा कि इसके लिए हमें वाइटल साइंस को असेस करना है एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को। अब इसके पीछे रेशनल ये है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ये तो एक साइन होता है कि ICP रेज हुआ है पेशेंट का।
ठीक है। तो हमें वाइटल्स चेक करेंगे तो हमें बीपी से हमें ये पता चलेगा कि अगर जब ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है लेवल जो वैल्यू है वो अगर डिक्रीज़ हो रही तो वो एक साइन होता है कि आईसीपी रेज हो सकता है पेशेंट में। तो आईसीपी रेज होगा तो उसके सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं हेडेक, ड्राउजीनेस, डिक्रीज अलर्टनेस, वॉमिटिंग, और फंटनली जो होते हैं बच्चों में वो बल्ज हो जाती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पे है कि वाइटल साइंस को असेस करना है और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को भी मॉनिटर करना है। सेकंड होता है असेस फॉर न्यूक्लियर रिजिडिटी, ट्विचिंग, इंक्रीज रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है। तो न्यूक्लियर रिजिडिटी वही होता है कि जिसमें नेक स्टिफनेस हो जाती है, तो उसको हम कैसे असेस करेंगे, उसके लिए साइन होता है जो मैंने आपको बताया वो चेक करना है। ठीक है। अगर न्यूक्लियर पेशेंट को ऐसा पेन है हो रहा है जो जैसे 2 साइन हमने असेस किए थे, कर्निंग साइन और ब्रुस्की साइन, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को मेनिंजियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। थर्ड इंटरवेंशन हम यहाँ पे ये करेंगे कि ऑब्जर्व करना है कि रेस्टलेसनेस और जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं वो किस हद तक बिगड़ गए हैं। ठीक है। तो इस सब से हमें पता चलता है कि आईसीपी रेज हो रहे हैं। अगर पेशेंट रेस्टलेस है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारे क्लू होते हैं कि हमें पता चलता है कि ये रिलेटेड हो सकते हैं आईसीपी इंक्रीज होने से, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो नेक्स्ट इज हमने आर्टरी ब्लड गैसेस को मॉनिटर करना है और ऑक्सीजन सेचुरेशन से। तो इससे हमें पता चलेगा, एबीडी से हमें पता चलता है ऑक्सीजन लेवल कितना है ब्लड में, सेचुरेशन लेवल पता चलता है, और हमें और पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी की नीड है कि नहीं ये भी पता चल जाता है। अब इसके बाद ये है कि नेक्स्ट इंटरवेंशन ये है कि हमें हेड और नेक को एक मिड लाइन पोजिशन में रखना है। पिल्लो हम दे सकते हैं लेकिन स्मॉल पिल्लो दे सकते हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है। मिड लाइन पोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ना ही वो हाई फॉलर होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल हाई रेज कर देते हैं, हेड को फॉलर पोजीशन में रखते हैं, तो उससे क्या होगा, तो इसका एक सिम्टम मैंने ये बताया आपको कि आईसीपी रेज हो जाता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि आईसीपी रेज हो सकता है, तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइड होता है, सेसा फ्लूइड होता है, उसका सीसा फ्लूइड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, बेड की पोजीशन को बिल्कुल मिड लाइन में रखना है। ठीक है। जिससे आईसीपी रेज ना हो, बैंडिंग नहीं करनी है नीज को, और हील्स को, जो मैट्रेस है, लेग्स की हील्स को बिल्कुल मैट्रेस में हील को पुश नहीं करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करेंगे तो आईसीपी रेज नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरवेंशन सेम है, हेड को 30 डिग्री में एलिवेट करना है आपने, नेक फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन ये अवॉइड करना है, क्योंकि नेक फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन से क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वीनस ड्रेनेज होता है हेड का वो बढ़ सकता है, और वीनस ड्रेनेज बढ़ेगा तो वीनस ड्रेनेज मतलब जो वीनस फ्लूइड होता है, अगर वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सेरेब्रल कंजेशन होगा, एडिमा होगी, आईसीपी रेज होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि हाइपोक्सिया के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम सही इंक्रीज़ हो जाता है, और आईसीपी जो होता है, ये सब जो आईसीपी रेज होता है, तो उससे क्या होता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है पेशेंट को, तो उसमें रिलीव होता है पेशेंट को। अब इसकी बात है कि अगर नेक्स्ट है कि हमें यहाँ पे मेडिकेशन जो इंडिकेटेड होती हैं वो एडमिनिस्टर करनी है। तो इसमें हम डायरेटिक्स देते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और एंटी कन्वल्जेंस देते हैं। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का फंक्शन यही होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, जो सेरिब्रल एडिमा हो गई है वहाँ पे, तो उसको वो कम करते हैं। मैनिटॉल देते हैं। ठीक है। एंटी कन्वल्जेंस में हम डाइजेपाम दे सकते हैं, फेनिटोइन दे सकते हैं सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। सो ये तो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए इंटरवेंशन थे, जिसमें इन्फेक्टेड टिश्यू परफ्यूज़न हो गया था। इन्फेक्टेड टिश्यू परफ्यूज़न मतलब कि प्रॉपर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उसके लिए इंटरवेंशन यही था कि मॉनिटर साइन, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। सेकंड थिंग थी कि हमने न्यूक्लियर रिजिडिटी को एसेस करना है। रेस्टलेसनेस पेशेंट को है तो इंक्रीज, अगर रेस्टलेसनेस हो रही है तो उसको भी एसेस करना है। थर्ड था कि एबीजी गैसेस और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना है। हेड और नेक को मिड लाइन पोजीशन में रखना है। स्मॉल पिलो सब प्रोवाइड करनी है, 30 डिग्री एंगल में होना चाहिए हेड। नेक फ्लेक्शन एंड हिप फ्लेक्शन अवॉइड करना है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। मेडिकेशन यहाँ पे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है और एंटी कन्वल्जेंट्स हैं।
सो द नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है हाइपरथर्मिया, क्योंकि पेशेंट को फीवर भी है तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन दैट इज एविडेंस बाय हॉट प्लस स्किन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्ट सीजर्स। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हाइपोथर्मिया अगर फीवर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर तो रेज होता ही है, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो उससे रिलेटेड इंटरवेंशन यहाँ पे ये सेम होंगे कि वाइटल साइंस असेस करने हैं, और अगर फीवर है फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। और ठीक है, और अगर पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर है तो मीन कि वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि पेशेंट को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है मेनिंजाइटिस का। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एक रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में पेशेंट को रख देते हैं। ठीक है, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा ना हो। ठीक है, फीवर अगर बार बार आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज आईसीपी। पेन होता है, जैसे मैंने आपको बताया नेक पेन होता है पेशेंट को, वो किस वजह से हो रहा है, नेक पेन की जो मेनिंजेस के जो लेयर है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से नेक स्टिफनेस होती है, हेडेक, इरिटेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे यही है कि हेडेक और जो फोटोफोबिया हो गया, फोटोफोबिया मीन्स उसको लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइट उसको डार्क रूम में ही रहना पसंद होता है, अगर लाइट से उसको इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, सो इसके पीछे रेशनली ये है कि हेडेक को असेस करना है। और हेडेक पेशेंट में क्यों असेस करना है, क्योंकि हेडेक एक साइन हो सकता है यहाँ पे असेस करने का कि ब्रेन में इन्फेक्शन है, मेनिंजेस में इन्फेक्शन है। और ये जो हेडेक है वो मेनली किस वजह से हो सकता है कि जो इन्फ्लामेशन वहाँ पे हुआ है मेनिंजेस में, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, हेडेक जो फोटोफोबिया हो रहा है, लाइट से सेंसिटिविटी हो रही है, वो मेनली इसी वजह से हो सकती है, मेनिंजाइटिस की वजह से। सेकंड थिंग है कि हमने कर्निंग साइन को असेस करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कर्निंग साइन में पेन होता है। अगर पेशेंट को 90 डिग्री एंगल में आप लेग्स को एलिवेट करने को बोलते हैं, एक्सटेंड करने के लिए, देन उसके बाद फ्लेक्स करने के लिए बोलते हैं, तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली पेन होता है। ठीक है, और ब्रूस्की साइन में क्या होता है कि ब्रूस्की साइन में बस है कि आपने नेक को रेज़ करना है। अगर नेक को रेज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लेग्स होती हैं वो भी रेज़ हो जाती हैं, मीन्स पेशेंट फ्लेक्स कर लेता है लेग्स को, जबकि नहीं करना चाहिए, नॉर्मली पर्सन ऐसा नहीं करता है। सो ये सारे साइन होते हैं कर्निंग साइन, और उसके साइन से हमें पता चलता है कि मेनिंजियल इरिटेशन तो नहीं है, मेनिंजियल इन्फेक्शन तो नहीं है। और पेशेंट को थर्ड थिंग ये है कि इसमें क्वाइट इन्वायरमेंट देना है और चाइल्ड को डार्क रूम में रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या पेशेंट को लाइट से सेंसिटिविटी हो गई है। फोर्थ थिंग है यहाँ पे कि स्टिमुलेशन प्रिवेंट करना है, स्टिमुलेशन और रेस्ट्रिक्ट करना है विजिटर को। ठीक है, इससे क्या होगा कि विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करने से और स्टिमुलेशन मतलब किसी तरीके का डिस्टर्बेंस उसको नहीं करने से, इससे क्या होगा कि उसको जो इरिटेबिलिटी हो रही है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, और विजिटर से क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टर्न द क्लाइंट ऑफन एंड पोजिशन द क्लाइंट केयरफुली। इससे ये प्रमोट करता है कंफर्ट को और रिड्यूस करता है इरिटेशन एंड एजिटेशन। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज यहाँ पे हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नेक स्टिफनेस है तो इसमें थोड़ा उसको रिलीव हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेट करना है एंटीबायोटिक्स को और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। द फंक्शन हमें पता ही है कि एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन ये होता है कि वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन है कि एनाल्जेसिक्स को एडमिनिस्ट्रेट करना है, जैसे एसिटामिनोफेन है, एनसेड है, इसके अंदर पेन किलर्स आते हैं या एंटीपायरेटिक्स भी आते हैं एनसेड्स में, ये पेन को रिलीव करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो 3 नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे थे। वो फर्स्ट था इनफेक्टेड टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, सेकेंड हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन, थर्ड एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज आईसीपी। ओके, सो इसमें हमने देखा मेनिंजाइटिस क्या है। ये मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है मेनिंजेस, उसके अंदर जो ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पाइमीटर है, उन लेयर्स में इन्फेक्शन हो जाता है। कॉजेज थे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, रिकेट्शियल, और कुछ इंजरी से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पेशेंट की पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई इन्फेक्शन है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो ये सारे कॉजेज़ थे। और टाइप्स भी सेम है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक। वायरल मेनिंजाइटिस के 2 कॉमन एग्जांपल्स थे यहाँ पे, कॉक्सैकी वायरस एंड कॉक्सैकी वायरस भी। वायरल मेनिंजाइटिस मेनली जो होता है टिपिकली वो खुद ही सही हो जाता है। बैक्टीरियल था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इसके अंदर एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, और न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
ठीक है। फंगल पैरासाइटिक और रिकेट्शियल ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं इसके। सिम्टम्स हमने इसमें पढ़े इसके, वायरल बैक्टीरियल कुछ सिम्टम्स कॉमन है जैसे फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, चेंज इन मेंटल स्टेटस और फोटोफोबिया, सीजर्स। और बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल में स्किन में इसकी वजह से कुछ पर्पल कलर के रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट थे लंबर पंचर, ब्लड कल्चर्स, चेस्ट एक्सरे, CSF एग्जामिनेशन करते हैं फॉर सेल काउंट के लिए, ग्लूकोज लेवल और प्रोटीन, ये सारे फ्लूइड के अंदर होता है CSF के अंदर। CT स्कैन, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। दो साइन मैंने आपको बताया, कर्निंग और ब्रुस्की साइन, जो जिससे हम असेस करते हैं कि वो मेनिंजाइटिस पेशेंट को है कि नहीं कंफर्म करने के लिए, कर्निंग एंड ब्रुस्की साइन। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स है, फ्लूइड्स दे सकते हैं हम, और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हीमोफिलस वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन है। और पेशेंट को आइसोलेशन में भी रखते हैं जिससे कि इन्फेक्शन और स्प्रेड ना हो। हेल्थ एजुकेशन देनी है रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है। थैंक यू।